Good morning student. Today we will read about our second chapter, Internet Online Surfing. So what is Internet and what is online surfing? So first we need to know about what is Internet. Internet is one of the common way to communicate with each other. That is the most common aspect of human lives, to communicate with one another living from one country to another country. So here in this chapter we will get through it and we'll know how to communicate with each other through online. So first of all we need to know about internet. What is internet? Internet is one of the most common way where we get data packs such as 25 MB or in 199 GB, 199 KB, like this. These are the different kilobytes, means bits, that are used in internet for surfing from one computer to another through network. These KBs and the other units that are used to communicate with one another. Likewise we use rupees to communicate from one another. Like we send a postcard from here to there, means from Chaibasa to Jamshedpur or Chaibasa to Ranchi. It cost 2 rupees, 3 rupees or something like that, or 20 rupees, 30 rupees. An envelope is needed to give some postcard or send something like that. So likewise in internet there is a need of data package is there, that is of 1 GB, that is 1 gigabyte. The measuring unit is byte. So bits that are used, that are known as bytes, which are given in computer or which are given in through network to communicate with each other. If your bytes are completed or the data package is over, you cannot use it. मतलब कि अगर आपको डाटा पैक जितना अवेलेबल कराया गया है इंटरनेट यूज़ करने के लिए, आप उतना ही डाटा यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको डाटा यूज़ नहीं कर पाएंगे. ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इंटरनेट पे दी जाती है. जैसे कि हम लोग पहले यूज़ करते थे पोस्ट कार्ड वगैरह यूज़ करने से क्या होता था कि पैसे लगते थे, पेपर्स यूज़ होते थे. तो ये सारी बहुत सारी जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें घट गई. किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से. तो इसी चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी अच्छाई क्या है, इससे हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिला कि हम इंटरनेट जब हम लोग ऑनलाइन सर्फिंग करना चालू किए हैं. जैसे कि मैं इस वक्त ये वीडियो आपको बना करके दे रही हूँ, तो ये वीडियो का भी एक डाटा पैकेज लगेगा, डाटा एक यूज़ होगी, MB यूज़ होगी. तो वो जो मेगाबाइट यूज़ किया जाएगा वो एक डाटा पैकेज है. विदाउट MB ये आपको यूज़ किए बगैर नहीं दिया जाएगा, आप इसे नहीं देख पाएंगे. तो ये जो है इंटरनेट आपको एक डाटा पैकेज देता है. तो यहाँ पे हम लोग इंटरनेट की मदद से क्या क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं. तो आप जो पहले भेजा करते थे पोस्ट कार्ड, उसका नाम अब क्या हो गया है? Nowadays it has become email, that is electronic mail. That electronic mail is used to send your data, your documents or something what you want to send to another person from one country to another country all around the globe. You can send it with the help of email. You can attach the file and you can send it. So that is known as email, and that is mainly provided to the other person through an email ID. So here we will need to know about what is email. So in this chapter the first topic is what are the advantages of email. Now email is fast, cost, convenience, and the very next is resource saving, maintenance of record, and reusable. These are some topics which we will discuss now. Advantages of email: it is very fast. Fast means within a second your message is delivered to another person. Likewise when we send some postcard or some kind of messages in the way of postcard from post office, then we send a message and it is delivered to another person in 2 to 4 days. That is time taking, that is cost also cost efficient, and that is not convenience. Means if it is not delivered to the same person that you have given, the address is not correct, it will get back to you. So that is also a problematic thing. Resource saving means resource. What is resource here?
The resource is page. That page you use to give to another person, that is resource. So here we can save resource from email. Maintenance of record means you can see when you have sent other person any mail, you can check anytime, anywhere. And the very next is reusable, means you can forward the same message to another person at the same time. You can forward it to any person. So here are some 6 points of advantages of email, and there are many more. So इस चैप्टर में हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? एडवांटेजेस ऑफ ईमेल मीन्स ईमेल की एडवांटेजेस क्या है? ये फास्ट है, मतलब ये तेज़ है, ये आपको सबसे पहले पहुंचेगा आप तक. दूसरा है कॉस्ट. कॉस्ट मतलब कि आपको क्या है, कॉस्ट एफिशिएंट है. दूसरे के पास में सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल्स जो है वो बहुत जल्दी जाएगा और जल्दी पहुंचेगा. दूसरे को आप जैसे ही सेंड करेंगे वो जल्दी पहुंच जाएगा और दूसरा रिसीव कर लेगा. यू आर द सेंडर एंड अनदर वन इज़ द रिसीवर. एंड द वेरी नेक्स्ट इज कन्वीनियंस. कन्वीनियंस मीन्स अगर आपने किसी को गलत मैसेज भेजा है, किसी के आईडी को गलत ईमेल आईडी भेज दिया है, गलत ईमेल आईडी पे आपने अगर कोई मैसेज भेजा है और आप उसको तुरंत कॉल करके पूछते हैं कि क्या आपके पास मेल आया है, और वो कहते हैं कि नहीं आया, देन यू गो थ्रू द ईमेल आईडी लाइक माई ईमेल आईडी इज़ Shreya123. सो इफ़ यू सेंड द मैसेज टू Shreya, if you send the email ID or any kind of message you will attach to Shreya234, then that message will get to another person, those who is carrying this ID, who will carry this ID Shreya234, he will get that message. So I will not get it, so you need to send to me. So you will get confirmed while calling me, or you will get in touch with me with any mode of communication through a mail or a message or a chat. So you will get, that is convenience, that comes in convenience. The very next is resource saving. I told you what is resource saving. We can save the paper, that is digital. So digitally we can send any message to you, so anybody in the world. So we will save our resource, natural resource. Then very next, maintenance of record. So maintenance of record means it will keep a record of what you send to another person. In any year you can see this message if you want to see a record that when you have sent to me or sent to anybody. Reusable means you can forward this message to another person. Same message can be forwarded to another person with the help of forward option. Now here next option is components of email address. Now what is components of email address? ईमेल एड्रेस के components क्या क्या है? ईमेल एड्रेस बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, a message can be sent to anyone around the globe through an email address. Without email address you cannot send anybody any kind of message in this form. So you need a email address. So first you need to make a email address. So email address is made from a 3 components, that is username, @ and domain name. Here you can see it, educationalmika@gmail.com. This is a 3 components. First one is Educational Mika, that is the username. Here we can say that you can take your name, Shreya or Amrita or any name you can write over here. @ is the symbol here to dedicate to some educational sites or some kind of professional sites like Gmail, Rediff Mail, Yahoo Mail. These are some email IDs. So here you can send it .com. This is the .com is used for domain purpose. Domain name. This is domain name means commercial purpose. .com, .in, .us, .in. These are the domain name from where you can know that this email ID is made for commercial purpose or an individual purpose. मतलब कि आपको यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे एजुकेशनल मीका पे, जैसे कि आप श्रेया लिखेंगे या फिर अमृता लिखेंगे या आप कोई भी नाम लिखते हैं, वो आपको अपना नाम आपको अपना नाम लिखना ज़रूरी है यहाँ पे. educationalmika@gmail.com आप यहाँ बॉक्स पे देख रहे हैं. यहाँ पे आपका क्या है, मैं Shreya123 लिखती हूँ अल्फ़ाबेट्स के साथ में.
उसके बाद आपको क्या दिया गया है, gmail.com। क्योंकि मैं gmail में बनाऊंगी इसलिए gmail.com रहेगा। अगर मैं rediffmail में बनाऊंगी तो rediffmail.com रहेगा। याहू में बनाऊंगी तो yahoo.com रहेगा। .com इज़ यूज फॉर इंटरनेशनल पर्पज़ ऑफ कमर्शियल पर्पज़, मीन्स कॉम इज़ यूज फॉर इंटरनेशनली कमर्शियल पर्पज़। आप कमर्शियल पर्पज़ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। कमर्शियल पर्पज़ मतलब आप जब दो लोगों में इंटरेक्ट कर रहे हैं तब ये चीज़ यूज़ होती है। तो ये आ गया कॉम में। .in जब आप यूज़ करते हैं तो वो पर्टिकुलरली इंडिया को शो कर रहा है कि आपने इंडिया ये जो अकाउंट बना है .in वो इंडिया के लिए बना है। जैसे कि amazon.in, अब amazon.in जो है आपका एक आईडी बनता है, तो वो जो है शॉपिंग ऐप है वो इंडिया के लिए है। इंडियन यूज़र्स कैन यूज़ इट ईजीली। .com is used for all purpose, means all over the world anyone can use it, that is commercial purpose. Then .us, then US peoples can use it. So these are the domain name which shows that from where this ID is meant for and what is the purpose of making this ID. So first of all, to create an email ID, we'll get connected to an internet, then we will type the email website address, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप ईमेल आईडी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से। इंटरनेट से आपका जो भी इंटरनेट है, जियो वाईफाई डिवाइस या एयरटेल हो या फिर आइडिया हो, एनी डिवाइस यू आर कैरिंग, यू कैन कनेक्ट टू इंटरनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कनेक्ट टू इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट it is not possible. So first you will connect to internet, then you will type an email web address. So web address, what is a web address? If you want to browse some address, web browser and website, these are two important aspects of internet. web browser किसे कहते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ये सारे वेब ब्राउज़र्स हैं जहाँ पे आपको वेबसाइट्स मिलते हैं। और वेबसाइट्स में आपका क्या है, अलग अलग पेजेस होते हैं। ये तीन तरीके के हैं जो कि आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईमेल आईडी बनाया कैसे जाता है। तो ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको क्या करना है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है। देन यू विल नीड टू गो टू द वेबसाइट लाइक जीमेल। सो मैं जीमेल एड्रेस पे जाऊँगी, gmail.com पे जाऊँगी। उसके बाद क्या होगा, वो पेज खुल जाएगी। दैट पेज विल गेट ओपन, देन यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ क्रिएट एन अकाउंट। टू क्रिएट अ न्यू ईमेल आईडी you will get this option. You can see over here there's one account all of Google, then below that sign in you will get an option of create an account. Create an account option is there. You can see this is a create option, create an account option. Here you will click. When you will click to and create an account option in Google, you will create an account, you will get this format in the page. So this is the format. You will type your name, choose your पासवर्ड, योर यूज़र नेम, देन पासवर्ड, देन कन्फर्म योर पासवर्ड। मीन्स आपको अपना नाम लिखना है सबसे पहले, देन चूज़ योर यूज़र नेम। यूज़र नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम 1 2 3 4, योर मदर नेम, योर फादर नेम, एनी नेम, एनी suitable name you can keep it, and with the it is most likely to keep your name with numbers, that is more safe and convenient. Then you choose a password. You can put a benevolent password that is convenient to you at the time when you enter a password. मतलब कि आपको जब भी कोई पासवर्ड आपको डालना है तो ऐसा पासवर्ड डालिएगा जो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, आपको जो याद रहे वैसा पासवर्ड डालिएगा। देन कन्फर्म योर पासवर्ड एंड रीड अगेन। आप उस पासवर्ड को दोबारा डालेंगे, अपना बर्थ डेट, जेंडर, ये सारे डालने के बाद में आप उसको सबमिट करेंगे। हियर इज़ द अनदर पेज साइट बिलो दिस। ये आपका कैप्चा कोड है 5293. देयर इज़ अ कैप्चा कोड ओवर देयर that is used in it. The captcha code is a type of response that is used in computing as an accept to ensure that the response is generated by the user. This captcha code is generally used that to see that a person is using a computer is a proper person or not, or is functioning with some getting some disabilities that it cannot respond to it. आप एक प्रॉपर तरीके से इसको प्रोसेस कर रहे हैं, आपको एक रिस्पांस टेस्ट होता है कि आप इसको रिस्पांस कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए ये कैप्चा कोड बनाया गया है। तो कैप्चा कोड आप एंटर करेंगे, देन यू विल गेट अ ईमेल आईडी. सो हेयर आफ्टर दैट क्रिएट योर पब्लिक और अकाउंट लाइक दिस. दिस इज अनदर
After opening your account, create an account, you'll go to this option, no thanks, then you will open this page. This is your page, welcome Mika. So here you get your account created. Create in Gmail. So you'll go through Gmail account. So there is a Gmail account over here. Continue to Gmail. So now continue to Gmail. You can open it and you can go through it. So to now open an email, what to do? You have to sign in. Now here, if you want to sign in, you will go through your username, what you have kept over there. That is, if I keep my name shreya123@gmail.com, then I'll put the username over here, shreya123@gmail.com. Then the very next, my password 12345678910. Any password, a strong password should be kept over there. Means आपको अपना यूज़र नेम देना है और पासवर्ड डालना है. पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक साइन इन ऑप्शन आया हुआ है. साइन इन ऑप्शन पे जाएंगे. यहाँ जो आप देख रहे हैं स्टे साइन इन ऑप्शन है. नेवर पुट अ साइन इन ऑप्शन ओवर हेड, नेवर टेक इट. वाई? यहाँ पे जो आपको साइन इन ऑप्शन दिया गया स्टे साइन इन, ये ऑप्शन जो है अगर आप अपने घर के कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं तो ही आप इसे यूज़ करेंगे. अगर आप कहीं बाहर साइबर कैफ़े में यूज़ कर रहे हैं या किसी अदर कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं जो आपका नहीं है, उसे अगर आप यूज़ करते हैं तो ये बेहतर रहेगा. ये प्राइवेसी टर्म के लिए मैं बता रही हूँ कि आप स्टे साइन इन से हटा देंगे. यहाँ पे जो टिक लगी हुई है उसको हटा देंगे एंड देन यू विल गो थ्रू साइन इन ऑप्शन. दिस इज़ बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम्स. बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं. अगर आप साइन इन करके छोड़ देंगे तो आपको क्या होगा कि आप जैसे ही इसे साइन इन छोड़ देंगे, नेक्स्ट अगर किसी ने भी जीमेल इसे खोला, जीमेल के gmail.com पे जैसे ही वो पेज कोई खोलेगा तो आपका वेबसाइट जो है वैसे ही खुला मिल जाएगा. तो आपका जो पेज है वो खुला रह जाएगा एंड एनी वन कैन मिस यूज़ इट. सो इट इज़ बेटर दैट कि आप उसको साइन इन नहीं करेंगे. ठीक है, स्टे साइन इन पे नहीं टिक करेंगे. देयर इज़ ऑप्शन, अगेन आई एम शोइंग यू, स्टे साइन इन ऑप्शन पे आपको टिक नहीं करना है. टिक हटा देंगे और साइन इन करेंगे. अगर आपके घर का कंप्यूटर है तो ही आप स्टे साइन इन पे रख सकते हैं, ताकि आप दोबारा कभी भी साइन इन करना चाहें या फिर पेज खुली भी रह जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो. सो हेयर दिस इज़ द पेज, दिस इज़ द इनबॉक्स पेज वेयर यू कैन सी दिस. दिस इज़ द इनबॉक्स पेज. इनबॉक्स, स्टेयर्ड, sent mail, drafts and more. So this is the primary information, social and promotions. This type of page is open when you create a email account. So now here you can see that sending an email. Now what is the need of sending an email? If you want to send someone an email or online or offline, so you can send it by writing a message over here. So type an email address. Here you can see this is the page. First of all we'll go to compose mail. Compose mail, there is option compose mail. रेड कलर का आपको बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे. कंपोज ईमेल ऑप्शन है ये. कंपोज बटन पे आप क्लिक करेंगे. कंपोज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे कंपोज ऑप्शन पे, आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आएगा. ये खुलेगा इस तरीके से. ये पेज यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैंक फॉर्मेट है. ये जो आपको दिख रही है न्यू मैसेज, जब आप कंपोज पे जाएंगे तब आपको जाकर के ये न्यू मैसेज खुल जाएगा. तो न्यू मैसेज पे जाकर के आपको क्या करना है, टू मीन्स आपको किसकी ईमेल आईडी पे ये मैसेज भेजना है. उस पे जाएंगे, देन सब्जेक्ट डालेंगे. सब्जेक्ट डालने के बाद में आपको क्या करना है, फाइल अटैचमेंट. अब आपको फाइल कौन सी अटैच करनी है, तो यहाँ पे आपको अटैचमेंट ऑप्शन है. यहाँ देख सकते हैं ये जो पिन टाइप का बना हुआ है, दिस इज़ एन अटैचमेंट ऑप्शन. सो व्हेन यू वांट टू अटैच सम फाइल यू कैन अटैच इट थ्रू दिस. So here you will touch, then you will get an option like this. This is the option. This is your desktop screen options. Here you can see that backup of data space. For example, here's the file name, backup of database. So backup of database, we can attach this file through file attachment option. So here we need to know about what is BCC and what is CC and what is subject and what is attachment. So here you will write two BCC and CC. CC is carbon copy and BCC is blind carbon copy. Now what is two means first of all we will need to know about what is two means यहाँ पे आप किसको भेजना चाहते हैं, तो आप उसको डेडिकेट करेंगे. आप उसके ईमेल आईडी को भेजेंगे जिसको आप भेजना चाहते हैं ये मेल. अपनी ईमेल आईडी नहीं डालनी है, आपको दूसरे की मेल आईडी डालनी है. फॉर एग्जांपल अमृता 123
@gmail.com @yahoo.com, जिसकी भी जो भी ईमेल आईडी है आप उसको लेकर के डालेंगे। सब्जेक्ट में जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ कंप्यूटर नोट्स, मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ कंप्यूटर के नोट्स, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर नोट्स लिखूँगी। CC मीन्स यहाँ पे आपका क्या रहता है, ये कार्बन कॉपी रहता है, मीन्स इसकी एक सिंगल सेम टाइप की मैसेज जो है ये टाइप रहती है, ये जो है सेव हो जाता है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये क्या करता है, जो आपने मैसेज दूसरे को सेंड किया है वो सेवरल टाइम आप उसको भेज सकते हैं, अदर यूज़र्स को आप एट ए टाइम भेज सकते हैं, इसलिए इसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहा जाता है, बिना दूसरे को पता लगे हुए। जैसे कि आप फॉरवर्ड करते हैं किसी को, आप कोई मैसेज जब फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपको एक फॉरवर्डेड ऑप्शन आता है। आप आजकल यूज़ करते हैं व्हाट्सएप में आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा रहता है फॉरवर्डेड। अगर आप कुछ अपने से फ़ोटो खींच के भेजते हैं तो उसमें फॉरवर्डेड नहीं आता है, क्योंकि दैट इज़ अ original copy. Then when you send to another person, that is forwarded option is over there, that is carbon copy. And blind carbon copy is the same message is sent to everybody, several peoples, but you cannot know that it is a blind carbon copy. That is option, मतलब कि मैं अगर आपसे ज़्यादा अधिक लोगों को भेज रही हूँ, एक से अधिक लोगों को ज़्यादा भेजती हूँ एट ए टाइम में, तो वहाँ पे फॉरवर्ड ऑप्शन नहीं आएगा। ये ऑप्शन तब नहीं आएगा जब आप उसमें BCC पे क्लिक कर देंगे। BCC जब आप क्लिक कर देंगे, दैट विल बी अ ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मीन्स दूसरे को ये नहीं पता चलेगा कि ये फॉरवर्डेड है, मतलब मुझ में भी आया है, ये मेरे में ही आया है, ये पता रहेगा, मतलब मेरी ही मोबाइल पर आया है या मेरी ही कंप्यूटर पे मेल पे आया है, ये दूसरे को भी सेंड किया गया, ये बात का पता दूसरे को नहीं चलेगा। इसके लिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है। देन हेयर इज़ द सब्जेक्ट ऑप्शन, मैं बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट में जैसे मैं कंप्यूटर नोट्स लिखूँगी। देन अटैचमेंट ऑप्शन है, और उसके बाद में आप उस पर अटैच कर सकते हैं जितनी आपको फाइल दी गई है, तो उसके आपका जो फाइल का अटैचमेंट है वो आप फाइल अटैच कर सकते हैं। 35K उसका किलोबाइट आपका ये एक यूनिट दिया गया है, जिसको आप अटैच करने पे आपको उतने ही KB का यूज़ किया जा सकता है, तो आप उसको यूज़ करेंगे और उसके बाद ब्लैंक स्पेस के थ्रू आप उसको दूसरे को भेज सकते हैं। ब्लैंक स्पेस में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, वहाँ पे आपको अटैचमेंट ऑप्शन में आ जाएगा, एंड देन यू विल सेंड ऑप्शन यूज़ करेंगे आप। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे देख सकते हैं, फॉरवर्डिंग ऑप्शन पे सेंड बटन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है सेंड। यहाँ पे जब सेंड ऑप्शन आप देंगे, सेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो मैसेज है ये सेंड हो जाएगा और दूसरे पर चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फॉरवर्डिंग मैसेज पे गया है ऑप्शन। तो जब आप यहाँ पे CC और BCC, तो यहाँ पे देख रहे हैं फॉरवर्ड ऑप्शन, CC एंड BCC, सेंड ऑप्शन आपको दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये दूसरे को फॉरवर्ड करने के लिए, तो सेम मैसेज को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या है, ये आप देख सकते हैं कि गूगल ड्राइव एक तरीके का फ्री स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पे मैं दूसरे को भेज रही हूँ, आई एम कम्युनिकेटिंग विथ वन टू अनदर पर्सन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फाइल्स इन अ नेटवर्क, सो वी कैन save it through Google Drive. Google Drive is just like a pen drive, but it is a storage device. It was launched on April 24, 2012. Google Drive is one of the most popular facility on internet that helps to user to store data online and also allow to access them from anywhere. Means if you want to use a Google Drive, if you are keeping a record of some files and it is lost, means your hard drive is lost. हार्ड ड्राइव मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हार्ड ड्राइव क्या है, जैसे कि पेन ड्राइव्स हो गए तो वो हार्ड ड्राइव्स में आ जाएगा, CDs क्या हो गए वो हार्ड ड्राइव में आ जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हार्ड ड्राइव में। तो हार्ड ड्राइव में क्या होता है कि अगर हार्ड ड्राइव लॉस्ट हो गया, खो गया तो आप क्या करेंगे, खो गया तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो फाइल अब आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ से समझ लीजिए कि आप लखनऊ चले गए हैं और लखनऊ जाने के बाद में आपकी वो पेन ड्राइव खो गई, तो वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थी और आपको तुरंत ही चाहिए, तो आप कहाँ से लेकर के आएंगे, किस तरीके से आपको वो फाइल मिलेगी। तो इसके लिए क्या है, आजकल आपको गूगल ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है। मीन्स इट इज़ अ लाइक ऑफ स्टोरेज डिवाइस लाइक पेन ड्राइव CDs, इस तरीके की एक डिवाइस है जो आपके मोबाइल पे ही अवेलेबल है। गूगल ड्राइव आप देख सकते हैं अपने आजकल के एंड्रॉयड के सेट में अवेलेबल है एक ऑप्शन गूगल ड्राइव, एक ऑप्शन बना हुआ है गूगल ड्राइव का, वो आप देख सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, सेव कर सकते हैं। आप जो भी फ़ोटोज़ हो गया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, गूगल ड्राइव में अगर आप सेव कर देंगे तो आप कहीं पे भी उसको ले सकते हैं। यू कैन रिट्राइव इट,
मीन्स रिट्राइव मीन्स आप उसको कहीं से भी उपलब्ध करा सकते हैं, जब भी आपको चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एनीवेयर थ्रू योर ईमेल आईडी। अगर आपको अपनी ईमेल आईडी पता है, आपको पासवर्ड पता है, तो आप ईमेल आईडी ओपन करेंगे और कहीं पे भी जाकर के आप क्या कर सकते हैं, उसको चालू करके आपको जो फाइल्स चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ फैसिलिटी ऑफ गूगल ड्राइव एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट स्टोर योर डाटा। लाइक हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क में क्या होता है कि आपका कंप्यूटर्स में फाइल्स रहते हैं, लेकिन ईमेल्स में भी जैसे आपका इनबॉक्स में मैसेजेस रह जाते हैं, उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, मेल्स की तरह ही ये सारे फाइल्स भी सेव्ड रह जाएंगे। सो वेरी नेक्स्ट इज़ टू एक्सप्लोर यूजेज ऑफ गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो क्या करेंगे, साइन इन ऑप्शन पे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, google.co.in पे जाएंगे, तो google.com या google.co.in पे भी जाएंगे तो आप ओपन करेंगे, क्योंकि हम लोग इंडिया के हैं तो co.in पे भी जा करके वेबसाइट पे ऑन कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन साइन इन बटन। साइन इन ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ साइन इन ऑप्शन पे जाएंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है kumar@gmail.com। यहीं पे आपको क्या करना है, अपनी बनाई हुई ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। देन यू विल पुट योर अकाउंट, ईमेल अकाउंट पासवर्ड। सो हेयर इज़ द पासवर्ड, टाइप योर पासवर्ड, देन यू गो टू नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक ऑन द ग्रिड आइकॉन्स। यहाँ पे ग्रिड आइकॉन्स है, माई अकाउंट, यूट्यूब, जीमेल, ये जो है आपका ये है गूगल ड्राइव। आप अपने मोबाइल पे इस वक्त देख सकते हैं कि आपके पास ये मोबाइल, हर मोबाइल में एंड्रॉयड एप्लीकेशन के हर सेट में ये ऑप्शन है ड्राइव लिखा हुआ है। दैट इज़ एन ऑप्शन which is used to store data. You can save your data, store your data in Google Drive. So it is beneficial. So here you can keep your data secured. Now uploading and syncing files, you can upload your files to Google Drive. How you will upload? Google Drive provides only 15 gigabytes, that is more than enough. 15 gigabytes ये स्टोरेज डिवाइस है, उसकी स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी है 15 GB इसकी स्टोरेज है। आप आराम से इसमें 15 GB तक की फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, कोई भी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले फाइल अपलोड ऑप्शन पे जाएंगे। फाइल अपलोड ऑप्शन पे जाने के लिए आपको क्या करना है, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे जब, तब आपको यहाँ पे फाइल अपलोड ऑप्शन आएगा। फाइल अपलोड ऑप्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही ये मेन्यू आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या है, फाइल अपलोड ऑप्शन। फाइल अपलोड ऑप्शन पे जाकर के आप जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल्स खुलेगी। यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ डेस्कटॉप लिखा गया है। डेस्कटॉप ऑप्शन पे क्या है, डेस्कटॉप ऑप्शन पे खुलने के बाद क्या होगा, बुक वर्क स्टेटस जो आपको दिया गया है, जो कि आपका कंप्यूटर में अवेलेबल है, तो उसको आप खोलेंगे। यहाँ देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ ओपन करेंगे। जैसे ही आप यहाँ ओपन करेंगे, ये पेज जो है यहाँ जा कर के खुल जाएगी। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये फाइल जो है अपलोड हो गई है। यू विल गो टू एन अपलोड फाइल। तो यहाँ पे क्या है, आपको ऑप्शन जब दिया गया यहाँ पे फोल्डर अपलोड, अब यहाँ पे वो फाइल अपलोड हो गई। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता रही थी फाइल अपलोड, ठीक है, अपलोड अ फाइल। फाइल अपलोड के बाद में क्या आ रहा है, आपको अपलोड अ फोल्डर अपलोड करने के लिए सेम चीज़ करना है। न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए फाइल अपलोड था, वो मतलब कि आप सिर्फ फाइल अपलोड कर सकते थे, एक छोटी सी फाइल हो गई। और ये फोल्डर क्या है, एक पूरा का पूरा एल्बम जैसे हो गया, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोल्डर अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे यहाँ स्क्रीन पे आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेम ऑप्शन है। आपने जैसे कि फाइनल आईडी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक फोल्डर ऑप्शन है। दिस इज़ नॉट अ फाइल लाइक दिस, ये एक सिंपल सी फाइल नहीं है जो कि आप यहाँ पे देखे हैं, ये एक फ़ाइल का सिंबल है। देख रहे हैं, ये पे एक्सेल की पेज है, बुक वर्क स्टेटस, ये जो है ये एक एक्सेल की पेज है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़ अ फोल्डर। यहाँ पे जो आप बॉक्स टाइप का देख रहे हैं, ये आपको पता है कि सिंबल जो है ये फोल्डर की होती है। तो ये फाइनल आईडी जो एक ऑप्शन है, ये आपका स्टोर करने, आपको जो है ऑप्शन है जिसको आप अपलोड करेंगे, दैट इज़ फोल्डर। यू विल अपलोड अ फोल्डर ओवर देयर। Then again next to it you can see that in a view pane there is an option in Google Drive view pane, what are uploaded in your Google Drive. So you can see it like when you see a
computer, and when you see there what kind of icons are available in your computer, what you have fed it, that is also that is the type where when you feed some files or folders in your Google Drive, you can see it through view pane. So you will open it and you will see that there is your files uploaded, and your folders are also uploaded over there, and you can use it anywhere if you want to access it through Google Chrome. So now if you want to search, you can also search it. How can you search it? You will go to search option. There is a search option over here, like bookwork. Bookwork is a file name. So here you can search it. Go to bookwork and then you can search. When you will go to search, you will get these options: bookwork status, book printing order. So whichever you want to go through, you can go through it. Then this is the next option, sorting files. Now how can you sort your files? Sorting means आप उसको अरेंज कैसे करेंगे, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर और अ डिसेंडिंग ऑर्डर. इट इज़ मॉडिफाइड बाय योर डेट और लास्ट मॉडिफिकेशन डेट, और बाय नेम और फाइल्स नेम लाइक अल्फ़ाबेटिकली और डेट वाइज. सो यू कैन मॉडिफाई इट बाय सॉर्टिंग फाइल्स. आप उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. कब आपने अपलोड किया था तो डेट वाइज भी आप उसको कर सकते हैं. और एक दूसरा तरीका है अल्फ़ाबेट्स की तरह, जैसे ABCD की तरह जो है नाम जो है, आप उसको भी उस तरीके से आप सेव कर सकते हैं. तो आप उस तरीके से शॉर्ट कर लेंगे उस फाइल्स को, मतलब उस तरीके से अरेंज कर देंगे, या तो असेंडिंग में तो डिसेंडिंग में, या फिर मॉडिफिकेशन आपको जिस तरीके का चाहिए. उसके बाद आप उस फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ देख रहे हैं आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट में कि यहाँ पे न्यू फोल्डर्स आ रहे हैं. आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं. आप अपने भी खुद एक फ़ोल्डर बना सकते हैं. उस फोल्डर में आप अपनी फाइल्स बना करके सेव कर सकते हैं. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मूव फाइल्स फोल्डर्स. एक फ़ोल्डर से आप दूसरे फोल्डर में कैसे मूव करेंगे, तो एक फ़ाइल को लेकर के आप दूसरे फाइल में जा करके उसको सेंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल गो टू नेक्स्ट फाइल. टू डिलीट अ फाइल, लास्ट ऑप्शन है कि आपको अगर किसी चीज़ को डिलीट करना है, कोई फाइल को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, अनवांटेड फाइल है, यू डोंट वांट टू यूज़ इट, you want to delete it from your computer, then you can delete it with the help of delete option. So first you will select your file or a folder, then there is an option of remove. You will go to remove option and then you will click on OK button. remove option पे आप जा करके क्लिक करेंगे. जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपका रिमूव हो जाएगा परमानेंटली. ये आपका टेम्प्रोरी था, और यहाँ पे आप अगर परमानेंटली यूज़ करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या करना होता है, यू विल हैव टू डिलीट इट फ्रॉम ट्रैश ऑप्शन और अ रिसाइकल बिन. सो देयर इज ऑप्शन टू टाइप्स ऑफ, इफ़ यू डिलीट एनी काइंड ऑफ फाइल इन योर कंप्यूटर, इट विल गो टू रिसाइकल बिन. आप अगर कोई भी ऑप्शन को डिलीट करते हैं, कोई भी फाइल्स को डिलीट करते हैं, तो वो कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में. सो यू कैन रीस्टोर इट फ्रॉम देयर. बट इफ़ यू वांट टू डिलीट इट परमानेंटली, then you will go to recycle bin and you will delete it forever. That is permanent. इस permanently आप delete कर देंगे. यहाँ पे आपको delete option, delete forever option है. यहाँ पे restore and delete forever option, दो options आपको दिए गए. इन options पे आप use करेंगे और उसके बाद आप उसको permanently delete कर देंगे. And the very last is sharing files. शेयरिंग फाइल्स के लिए आप फाइल जब आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप अपनी गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे, आप उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे. सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये फाइल आपने सेलेक्ट किया है मंथली बजट. तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे. फाइल सेलेक्ट करने के बाद में क्या है, क्लिक ऑन शेयर ऑप्शन. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक शेयर ऑप्शन आपको दिया गया है, किसको आप शेयर करना चाहते हैं. उसके बाद शेयर विथ अदर्स, आप किसको शेयर करना चाहते हैं उसका आप ईमेल आईडी डालेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से हो रही है. सो यू नीड एन ईमेल आईडी. तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे, देन यू गो टू सेंड ऑप्शन. यू गो टू सेंड ऑप्शन एंड यू विल सेंड इट एंड द फाइल विल बी गेट शेयर्ड विथ अदर पर्सन.